Hello and welcome to Sunil Jha Show, and you're watching Speak Up India. It is extremely important to have a look at India's space mission. What has been India's space mission since 1947? Who are the key figure? What is their contribution? And who can be called the messiah of Indian space program? भारतीय विज्ञान में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा लीडरशिप है, कौन से ऐसे शख्स हैं, कौन से ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं, कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है टू टेक इंडिया टू स्पेस एंड एक्सपैंड द इंडिया स्पेस मिशन, इंडियाज मून मिशन, इंडियाज मार्स मिशन एंड नाउ इंडिया सन मिशन आल्सो इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. सो कौन से वो लोग हैं जो इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया में इंपॉर्टेंट रहे हैं, खास करके स्पेस मिशन को लेकर, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ चंद्रयान, moon mission, and now sun mission also. I will point out a few facts and then I will give you my observation, and I will keep it fast, quick, because this is a little longish, so I will be little quick. अगर किसी को मेरे बताए हुए फैक्ट्स बायस लगे तो वो अपना रिसर्च दोबारा कर सकते हैं, सो दैट दे नो कि जो मैं बता रहा हूं फैक्ट्स वो सही है या नहीं. आई एम 100% श्योर कि आपको यही फैक्ट्स मिलेंगे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फैक्ट जो मैंने पिक किए हैं वो इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से हैं और बाकी साइंटिफिक जो वेबसाइट्स हैं उनसे ही हैं. तो फिर भी अगर किसी को लगे कि मैं बायस्ड वे में कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूं तो यू डोंट गो बाय व्हाट आई एम सेइंग, आल्सो डू अ पैरेलल रिसर्च सो दैट यू आर श्योर जो मैं कह रहा हूं वो फैक्ट ही है या मैं भी आपको फिक्शन ही लाकर दे रहा हूं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ इंडिया स्पेस मिशन? Chandrayaan is successfully launched. But how have we reached here? Indira Gandhi and Narendra Modi. These are two milestones. But who's the Chanda Mama of this nation? Who's the father of India's space mission as far as political leadership is concerned? इस कहानी की शुरुआत डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी जे भाभा से होती है. ये वो शख्स हैं दो जिनको लेकर सबसे ज्यादा बात स्पेस मिशन में होती है. 4 लोग हैं आपके स्क्रीन पर. ये चारों इंडिया के टॉप साइंटिस्ट हैं और इन्हीं को लेकर हम जब स्पेस और इंडिया स्पेस मिशन, इंडिया साइंस मिशन बात करते हैं तो आमतौर पर सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों की बात होती है. डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जे भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम आर द लीडिंग 3 पर्सनालिटीज. अब इंडिया के जो स्पेस मिशन की शुरुआत हुई वो तो खैर बाद में हुई. डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जे भाभा ने, जिनको कि आइकॉन्स ऑफ इंडियन स्पेस एंड एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम बोलते हैं, दे एस्टैब्लिश 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने एस्टैब्लिश किए, ये उस एफर्ट के बाद थे जो इतने सारे साइंटिस्ट ने मिलके एफर्ट किए, जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम इज द लास्ट इन द बिग साइंटिस्ट. ऑल दीज 10 पीपल, some of them you would know, some of them you would not know. I'm not naming any of them. You can go to Google and search the picture and you will get all the names. So I don't want to repeat it because it will be unnecessary going into a profile and expanding the show. I don't do that. But these are the 10 big scientists of this country at different era who have been talked about. Up till Mr. Kasturi Rangan, who was there on your screen earlier. So Mr. Kasturi Rangan was the ISRO chief who was highly respected, and he is the 4th person that we were talking about. So APJ Abdul Kalam, Dr. Homi J. Bhabha, Dr. Vikram Sarabhai and Kasturi Rangan. These are the 4 people who were on your screen here. As you can see, these are the 4 people and they are regarded the most important person in India's science program. Now, I talked about 2 important institutions which were set up by Dr. Sarabhai and Dr. Bhabha. Dr. Vikram Sarabhai founded the Physical Research Lab at Ahmedabad. Dr. Homi Bhabha established the Tata Institute of Fundamental Research, the famous Tata Institute of Fundamental Research. In 1950, this is what we are discussing is from 1947 till date, but there are period जब कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत कुछ हुआ नहीं है.
So there's a huge gap when it comes to certain period. तो उस बीच में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, इसलिए वो पूरा पूरा गैप ही हो जाता है. So 1950 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाज सेट अप बाय द नेहरू गवर्नमेंट. तो डिपार्टमेंट ही था एक, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी था. कोई स्पेस मिशन या इंडिया का कोई स्पेस साइंस के लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं था. सिर्फ एक डिपार्टमेंट सेटअप किया गया 1950 में, व्हेन द फर्स्ट elected government came to power, which is Jawaharlal Nehru's government, and they set up Department of Atomic Energy, and Dr. Homi Bhabha, again I will put him on screen, he was appointed the secretary of the department. After that, the next important year which comes in India's space program is 1962. So between 1947 and 1962 nothing much happened. 1947 और 1962 के बीच केवल 1950 में एक डिपार्टमेंट सेटअप किया गया, और वो डिपार्टमेंट का जो हेड थे या सेक्रेटरी थे वो डॉक्टर भाभा को, होमी भाभा को बनाया गया. 1950 के बाद 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई को लगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ये काफी नहीं है इंडियन स्पेस रिसर्च के लिए, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए. केवल ऐसे डिपार्टमेंट से हम कुछ भी कभी कर पाएंगे ऐसा नहीं पॉसिबल है. अब इंडिया उस वक्त यानी इंडिपेंडेंस से लेकर 1962 तक इंडिया स्ट्रगल कर रहा था अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई से. पंडित नेहरू का ज्यादा फोकस था इंडिया का सर्वाइवल, इंडिया सिक्योरिटी, फूड, पीपल्स पॉवर्टी, और जो पार्टीशन का इंपैक्ट था और डिवीजन का इंपैक्ट था उसको डील करने में. साइंस टेक्नोलॉजी वाज जस्ट अ मैटर ऑफ it was a word which also existed in our dictionary, and that is how it remained till 1962. So in 1962 Dr. Vikram Sarabhai envisaged, उन्होंने एक सपना देखा, उन्होंने ये प्रपोजल दिया पंडित नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को, that we should set up an organization called Indian National Committee for Space Research, इनको स्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च. तो एक ऐसी कमिटी बनाइए जो स्पेस रिसर्च पे फोकस करे, क्योंकि ये जो कमिटी बनी थी, जो डिपार्टमेंट बना था, वो तो एटॉमिक एनर्जी पे था, स्पेस पे कुछ भी नहीं था. विक्रम लैंडर. सो विक्रम लैंडर is named after Dr. Vikram Sarabhai, and Vikram Sarabhai suggested that only having a department for atomic research is not sufficient. Let us have a committee which should focus on India's space mission. यानी इंडिया का जो स्पेस ड्रीम्स है उसको पहली बार डॉक्टर विक्रम साराभाई ने देखा, और उन्होंने एक प्रपोजल बनाया. उस प्रपोजल को उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को 1962 में भेज दिया. जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और एक कमेटी बनाई जिसका नाम वही डाला जो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने प्रपोज किया, which was Indian National Committee for Space Research. So, INCO SPAR was formed in 1962 as per the dream of Dr. Vikram Sarabhai. Pandit Nehru only accepted that recommendation and formed a committee. अब कमिटी का फॉर्मेशन इसरो का फॉर्मेशन नहीं था, कमिटी का फॉर्मेशन इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का फॉर्मेशन नहीं था, कमिटी का फॉर्मेशन इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी नहीं था. इट वॉज ओनली इनिशिएशन ऑफ अ डायलॉग थ्रू अ कमिटी कि हम स्पेस फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं. सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमिटी वॉज टू डिस्कस द पोटेंशियल दैट इंडिया कैन एक्सप्लोर इन द फील्ड ऑफ स्पेस. इतना सा रोल था इस कमिटी का. Dr. Vikram Sarabhai became the chairman of this committee. So to say that Chandrayaan 3 landing is the fulfillment of the dream of Pandit Nehru is not correct. It was not a dream of Pandit Nehru. It was a dream of Dr. Vikram Sarabhai. Pandit Nehru only formed the committee, and after that, in 1962, Pandit Nehru died, and that was the only reference of Pandit Nehru vis-a-vis India's space program.
So in 1950, they formed a department for atomic research, and in 1962, they formed a committee for space research. That is, these are the only two relevant contribution of Pandit Jawaharlal Nehru as far as India's space program goes. So no confusion about this. Facts indicate that during the 15 years term, of Pandit Nehru as the Prime Minister of the country, the focus was largely on survival. And because we had to fight a war in 1962 with China, it became more of a problem. We lost, and then it was a different story because India was in a bad shape after the Indo-China war. But till 1962, we had to survive with a lot and we had to fight a lot with poverty. गरीबी इस देश में बहुत ज्यादा थी. मैंने जैसे बताया, इंडिपेंडेंस का जो साइड इफेक्ट था वो था, पार्टीशन हो गया था उसका साइड इफेक्ट था, सब लोग डिस्प्लेस हो गए थे, जो लोग पाकिस्तान में थे वो इंडिया आ गए थे, इंडिया के लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो जो लोग पाकिस्तान से आ गए थे उनका रीसेटलमेंट था. गवर्नमेंट का फोकस इस सब में चला गया. स्पेस प्रोग्राम, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को लेकर पंडित नेहरू ने बहुत ज्यादा फोकस किया, ऐसा फैक्ट्स नहीं बताते. Other than creating INCOSPAR, there's not much of a reference as far as Mr. Pandit Nehru's or Mr. Nehru's contribution towards space mission goes. The story changed. The story changed after Mrs. Indira Gandhi came into the picture. After Mrs. Indira Gandhi became the Prime Minister, the entire story changed. And that is why I'm saying these are the four principal characters of the show tonight. Mr. Narendra Modi, Mr. Atal Bihari Vajpayee, Mrs. Indira Gandhi, and Mr. Jawaharlal Nehru. These are the four principal characters जिनको लेकर हम फोकस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो कुछ भी स्पेस मिशन को लेकर हुआ है शुरुआत से लेकर अब तक वो सिर्फ इन चारों के आसपास ही घूमती है. जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे कम है, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा बात उनकी हो रही है इसलिए उन पर फोकस करना जरूरी है. अदर देन दैट, ये वो लोग हैं जिनको लेकर स्पेस मिशन को डिस्कस करना जरूरी है और डिसाइड करना जरूरी है कि इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था या जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडिया स्पेस मिशन को लेकर. इंदिरा गांधी वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एज फार एज द मिशन गोस. जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी उसके बाद इस देश में स्पेस मिशन को लेकर, साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत कुछ बदल गया. कैसे? ऑन अगस्त 15, 1969, 62 में कमेटी फॉर्म हुई थी. उसने 7 साल क्या किया कोई नहीं जानता है, उसका रेफरेंस भी नहीं है. इंडिया ने कोई ऐसा प्लान लॉन्च नहीं किया, कोई सैटेलाइट मिशन लॉन्च नहीं किया, कोई स्पेस मिशन लॉन्च नहीं किया, कोई प्रोग्राम नहीं है जिसको इनिशिएट किया. सो देयर इज अ साइलेंस बिटवीन 1962 and 1969. So 7 years complete silence. यानी कुछ नहीं हो रहा था इंडिया के स्पेस मिशन में. जाहिर है नहीं हो रहा होगा बिकॉज वी वेर रिकवरिंग और वी आर स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम 1962 वॉर. On August 15, 1969, while addressing the nation on Independence Day, 15 अगस्त 1969, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया कि हम इसरो की स्थापना कर रहे हैं. We are establishing ISRO, and ISRO will replace INCOSPAR. INCOSPAR, which was a informal setup, that will be now, the role will be taken over by ISRO, and ISRO will be an organization, unlike a committee of a few members to advise government on what is to be done as far as India's atomic structure goes, India's space mission goes. अब आगे से हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होगा विच विल बी कॉल्ड इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो. और इसरो का जो फाउंडेशन है, इसरो का जो क्रिएशन है, इसरो का जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो इंदिरा गांधी के अंडर में 1969 में हुआ है. सो इसरो को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है. इसरो वाज नॉट फाउंडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. इट वाज फाउंडेड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिसेस Indira Gandhi.
So Indira Gandhi's contribution in space mission is second to none. And if you want to categorize, maybe she will come in the top three, among the top three leaders who contributed the maximum towards India's space mission or India's science and technology ग्रोथ. स्पेस मिशन के लिए तो भले ही ना किया उतना, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी या स्पेस मिशन, स्पेस जो प्रोग्राम था इंडिया का, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, या जो हमारा एटॉमिक प्लान था, एटॉमिक प्रोग्राम था, उसको प्रिपेयर करने में इंदिरा गांधी हैड अ मेजर रोल टू प्ले. So all these, among all these people, Indira Gandhi was critical as far as India's space mission and atomic program are concerned. 3 years later, 1972 में इंदिरा गांधी ने एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्रिएट किया इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इससे पहले कोई डिपार्टमेंट नहीं था जो स्पेस को लेकर फोकस करे. यानी फर्क क्या होता है? इसरो वाज एन ऑर्गेनाइजेशन which was whose job was to think of projects, plan, program, missions, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं था. सो इन 1972 इंदिरा गांधी ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम दिया स्पेस डिपार्टमेंट. अब ये स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, पहले वाले डिपार्टमेंट जो पहले 1950 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनी थी, पंडित नेहरू ने बनाई थी, लेकिन स्पेस को लेकर नहीं बनाया. तो फिर 1972 में स्पेस को लेकर डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए बनी क्योंकि जब डिपार्टमेंट बन जाता है, किसी गवर्नमेंट सेटअप में एक डिपार्टमेंट बनता है, तो इस डिपार्टमेंट का बजट होता है. सो आपके पास मॉनेटरी सपोर्ट होता है. इसरो के पास मॉनेटरी सपोर्ट नहीं था. जो कुछ भी गवर्नमेंट दे देती थी वो हो जाता था. जो कुछ भी उनके पास रहता था उससे जितना कर सकते थे. कोई स्ट्रक्चर्ड बजट नहीं था. जब डिपार्टमेंट बना तो डिपार्टमेंट के अंडर में इसरो को लाया गया. वो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती थी, इसरो रिसर्च का काम करता था. उससे पहले इसरो अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता था और रिसर्च भी देखता था, वगैरह वगैरह सब कुछ. लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनने के बाद दे स्टार्टेड, यू हैड अ गवर्नमेंट ऑफिसर्स posted in Department of Science and Department of Space, and their job was to think of policies, and ISRO was supposed to implement those policies. So अब दो डिपार्टमेंट थे, दो बॉडीज थी जो काम कर रही थी स्पेस को लेकर. एक इसरो 1969 और एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 1972. इंदिरा गांधी ने दो चीजें की. बैंगलोर became the headquarters of ISRO, और इसरो के जो सेंटर्स थे, सबसे पहला तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, वलियामाला, अहमदाबाद और हैदराबाद. ये वो सेंटर्स हैं जो इसरो के सेंटर्स बने. 1975 में, 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना, 1969 में इसरो बना, और 1975 में इसरो के बनने के 6 साल बाद, डिपार्टमेंट के बनने के 3 साल बाद, 1975 में इंडिया ने पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया. दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट इंडिया कुड मेक, दैट इंडिया कुड क्रिएट इट्स ओन सैटेलाइट. और उस सैटेलाइट को सोवियत स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मोस, सोवियत, उस वक्त रशिया नहीं था, यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन जिसको बोलते थे. तो सोवियत यूनियन के एजेंसी इंटरकॉस्मोस के जरिए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया. सो 1975 इसरो केम अप विद फर्स्ट सैटेलाइट. अब ये कंट्रीब्यूशन इंदिरा गांधी का था. 75 में देश में इमरजेंसी लग गया. इंदिरा गांधी को लोगों ने बाहर कर दिया, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई और सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया. स्पेस प्रोग्राम ठंडे बस्ते में चला गया. काम चल रहा होगा लेकिन वो वर्चुअली ठंडे बस्ते में चला गया. तो उसके बाद बिटवीन 75 और 80 के बीच सिर्फ एक ही प्रोग्राम हुआ, और वो प्रोग्राम 79 में फेल हो गया. ज्यादा फोकस नहीं था. Why am I pointing out this is that a leadership is the most critical thing for any such big mission like Chandrayaan. अगर आपको चंद्रयान जैसे मिशन को अकम्प्लिश करना है तो आपको दो चीजों की जरूरत है, बल्कि 3 चीजों की जरूरत है. एक इसरो जैसा कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, एक विल, जो विल लीडरशिप से आती है. अब वो लीडरशिप इंदिरा गांधी की हो, वो लीडरशिप वाजपेयी की हो, वो लीडरशिप नरेंद्र मोदी की हो,
वो लीडरशिप पंडित नेहरू की हो, पीवी नरसिम्हा राव की हो या मनमोहन सिंह की हो, जिस लीडरशिप की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, जो लीडरशिप ज्यादा सोचेगा, वो लीडरशिप ज्यादा बेहतर करेगा। सो जिस लीडरशिप ने ज्यादा फोकस किया, उस लीडरशिप में इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, इंडिया का एटॉमिक प्रोग्राम ग्रो कर गया। जिस लीडरशिप ने फोकस नहीं किया, उस लीडरशिप के दौरान कुछ भी नहीं हुआ। सो 1975 इंदिरा गांधी के लीडरशिप में इस कंट्री ने काफी कुछ प्रोग्रेस देखा एज फार एज स्पेस मिशन एंड एटॉमिक प्रोग्राम इज कंसर्न। Indira Gandhi's role becomes extremely important because of that. इमरजेंसी आने के बाद इंदिरा गांधी was out of the scene and there was a lull for 4 years. 4 साल तक इस देश में स्पेस मिशन को लेकर, एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर क्या हो रहा था, किसी को कुछ नहीं पता। इंडिया केम क्लोज टू टेस्टिंग एन एटम बॉम्ब इन 1970s ड्यूरिंग इंदिरा गांधीज रिजीम, बट वो टेस्ट हो नहीं पाया। इंडिया ने किया नहीं वो टेस्ट। क्यों नहीं किया? लीडरशिप की वीकनेस थी, इंदिरा गांधी किसी प्रेशर में आ गई थी, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन इंडिया केम क्लोज टू टेस्टिंग एन एटम बॉम्ब in the 70s when Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister. So a leadership becomes extremely important. And the third thing, I was talking about 3 things. One is leadership, the will of a leadership. Second is organization like ISRO. And the third are scientists. So आप अगर किसी देश के पास बेहतरीन साइंटिस्ट हो, तो फिर उस देश को स्पेस में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, उसको देश को चांद पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, उस देश को दुनिया को मैथ सिखाने से कोई नहीं रोक सकता, जीरो देने से कोई नहीं रोक सकता, परसेंटेज सिखाने से कोई नहीं रोक सकता। ये वो चीजें हैं जो भारत बहुत पहले कर चुका था। अगर भारत में 2 बार भारत को उस तरह से कैप्चर नहीं किया गया होता जिस तरह से मुगल्स ने किया या ब्रिटिश ने किया, तो भारत की कहानी कुछ और रही होती। भारत का स्पेस मिशन, भारत का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, भारत का जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है और प्रोग्राम है, वो कहीं और होता। ये तो इन लोगों की साजिश थी जिन्होंने आकर देश को कब्जा किया, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी, ऐसे ही नहीं बनी थी। जो देश दुनिया को सिखा रहा था, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। अगर वो नहीं आया होता फेस, वो मुगल राज नहीं आया होता, वो ब्रिटिश राज नहीं आया होता, तो ये देश कब का चांद पे पहुंच गया। बिकॉज इंडिया के पास साइंटिस्ट हैं। ये वो साइंटिस्ट हैं जो आजादी के बाद नहीं आए, इनमें से कुछ साइंटिस्ट पहले ही अपना नाम बना चुके हैं। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केवल देश के लिए नहीं, देश की आजादी से पहले दूसरों के लिए भी काम किया। इन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसको लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे देश के आज तक नहीं कर पाए। सो India's growth story as far as science and technology is concerned is guided and is led by the scientists. Leadership तो है ही important, captain of the ship is always important, but आपके पास क्योंकि साइंटिस्ट हैं, इसलिए आप डिलीवर कर पाते हो with limited resources. इंदिरा गांधी came back in 1980. 4 साल का गैप, 5 साल का गैप, 75 से लेके 80 तक इंडिया केम बैक इंदिरा गांधी केम बैक इन 1980। और फिर क्या हुआ वो सुनिए। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो टुक 7 years। 72 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्रिएट हुआ, 75 में इंडिया ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। 7 साल बाद इंडिया ने अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, पहला SLV, और उन्होंने पहला अपना जो लॉन्च है वो 1979 में के एंड में किया, लेकिन वो फेल हो गया। रोहिणी सैटेलाइट प्रोग्राम था एंड इट फेल्ड। इंदिरा गांधी के आने के बाद ठीक अगले साल 2080 में इंडिया ने दोबारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च को इंट्रोड्यूस किया, और उसके जरिए रोहिणी 1 सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च किया सक्सेसफुली इन 1980। India in 1980 became the 7th country in the world to successfully launch a satellite using its own satellite launch vehicle. अगर सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो आपके लिए उसके लिए एक SLV चाहिए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चाहिए। इंडिया ने 1980 में अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च किया और दुनिया का 7वां देश बन गया। उससे पहले किस किस देश ने किया था?
यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके, चाइना और जापान वो इंडिया से आगे थे। 6 देश इंडिया से आगे थे, इंडिया 7वां था। लेकिन ये जो लॉन्च हुआ था वो पूरी तरह से इंडिया का इंडिजिनस लॉन्च नहीं था। रशिया हैड हेल्प्ड इंडिया इन अ ह्यूज मैनर, टेक्नोलॉजी से, मटेरियल से, सब कुछ अपने साइंटिस्ट के साथ, सब चीजों के साथ रशिया ने हेल्प किया, फिर इंडिया ये लॉन्च कर पाया। इट वाज नॉट एन इंडिजिनस, हमारे अपने साइंटिस्ट, हमारे अपने सामान, हमारा अपना एसएलवी, हमारा अपना सैटेलाइट ऐसा नहीं था। लॉन्च हमने किया, फायर हमने किया, लेकिन जो चीजें आई, जो टेक्नोलॉजी आई, जो साइंटिस्ट आए, वो रशियन आए, उन्होंने हेल्प किया और हम ये कर पाए इन 1980। ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रिजीम जो हुआ वो ये, दैट इंडिया कुड कैरी आउट द मैक्सिमम ग्राउंड वर्क फॉर द स्पेस मिशन, यानी स्पेस मिशन की ग्रोथ के लिए अगर ग्राउंड वर्क पे सबसे ज्यादा काम हुआ तो वो इंदिरा गांधी के रिजीम में हुआ। अब वो सैटेलाइट लॉन्च हमारे वेदर सिचुएशन के लिए हो, फोरकास्ट के लिए हो, टेलीविजन फ्रीक्वेंसी बीमिंग के लिए हो, सिक्योरिटी के लिए हो, ये सब कुछ का ग्राउंड वर्क भी हुआ और एग्जीक्यूशन भी हुआ, लेकिन वो लार्जली रशियन हेल्प से हुआ, यानी रशिया के हेल्प से हुआ। इंडिया खुद से नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त हम इतने पावरफुल नहीं थे, हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं था, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कोई मिशन खुद से क्रिएट कर सकें, खुद से बना सकें और खुद से लॉन्च कर सकें। ये काबिलियत हमारे पास उस वक्त नहीं थी, इसीलिए हम रशिया और यूएस पे डिपेंडेंट थे। रशिया हमें कभी हेल्प करता नहीं था, यूएस कभी हमें हेल्प करता नहीं था, और रशिया हमारा दोस्त लार्जली इसलिए बना क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में रशिया के पास टेक्नोलॉजी थी और रशिया हमको टेक्नोलॉजी देने को तैयार था, वो हमें दे रहा था और हम चीजें कर पा रहे थे। इसीलिए हमारा जो नेटवर्क, हमारा जो टाइप, हमारी जो दोस्ती रशिया के साथ हुई, उसका एक फंडामेंटल रीजन है इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी मिशन या इंडिया का स्पेस प्रोग्राम। दिस इज कोर टू इंडिया रशिया रिलेशनशिप। SLV 3 1980 में लॉन्च हुई। उसके बाद इंडिया ने ASLV लॉन्च किया, which was subsequently succeeded by development of many medium lift launch vehicles, rocket engines, satellite systems। ये वो चीजें हैं जो इंडिया ने इंदिरा गांधी के रिजीम के दौरान किया। मैंने कहा ना, ग्राउंड वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा काम हुआ तो इंदिरा गांधी के रिजीम में हुआ। इस दौरान इंडिया ने या इसरो ने बहुत सारे डोमेस्टिक और फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और बहुत सारे डीप स्पेस मिशंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स हैंडल किए। लेकिन ये सब कुछ, अगेन आई एम रिपीटिंग, was happening with the Russian assistance. India could not do it indigenously. Then came April 3, 1984. Now this is historic. Why? Because of this man, the man on your screen, Rakesh Sharma, and because of this lady called Indira Gandhi. 3rd April 1984 was instrumental in India's presence globally. इंडिया ने पहली बार दुनिया में अपनी छाप छोड़ी, अपनी पहचान बनाई, जब राकेश शर्मा पहले भारतीय बने जो स्पेस में गए। इससे पहले कोई भारतीय स्पेस में नहीं गया, इसके बाद भी कोई भारतीय स्पेस में नहीं गया है। 2 लोग गए हैं, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, लेकिन ये दोनों ही भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारतीय नहीं है। दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन बट दे आर नॉट इंडियंस, बोथ आर यूएस सिटीजन्स एंड they both went on a NASA mission and not an ISRO mission. Even Rakesh Sharma did not go as an ISRO mission scientist. He went as part of a joint program between Soviet Union and Indian Air Force. यानी इंडियन एयरफोर्स का टाइप था सोवियत यूनियन की एजेंसी, जिसका मैंने जिक्र पहले आपको किया। इन दोनों का जॉइंट जो इंटर कॉस्मोस एजेंसी है सोवियत यूनियन की, उस इंटर कॉस्मोस एजेंसी और इंडियन एयरफोर्स के जॉइंट प्रोग्राम का हिस्सा थे
और हिस्सा बने मिस्टर राकेश शर्मा, and he became the first Indian to go to space on the 3rd of April 1984, almost 6 months ahead of Indira Gandhi's assassination on 31st of October 1984. Rakesh Sharma was serving the Indian Air Force. He was the wing commander at that time, and he became the first Indian to go to space as he flew aboard Soyuz T-11. This was an aircraft which was launched, or a missile which was launched by Soviet Interkosmos as part of the Indo-Russia program, and it carried out space research at Salyut 7 orbital station. Now, Salyut 7 orbital station was the station where Rakesh Sharma stayed for 1 week and few hours. So, एक हफ्ते कुछ घंटे रहने के बाद राकेश शर्मा देश वापस आए, and Rakesh Sharma became the first Indian to go to space. So that was the historic moment that India saw in 1984, thanks to Indira Gandhi. He was selected in 1982, September 20, 1982, by the Indian Air Force. There was a standby pilot also, but Rakesh Sharma was found fit and he went on this mission. It was during a press conference that they conducted from space and they aired it to New Delhi and Moscow. So ये press conference था जो क्रू गई थी, सोवियत इंडियन क्रू गई थी, इसमें राकेश शर्मा भी थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे और बात कर रहे थे लीडरशिप से, और जो बाकी बड़े लोग थे यानी साइंस से जुड़े हुए, उनसे मॉस्को और न्यू दिल्ली में उस वक्त इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बात की थी और उनसे पूछा था कि वहां से आपको हमारा भारत कैसा दिखता है, और राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ये कहानी है इंदिरा गांधी और इंडिया के स्पेस मिशन की। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एज फार एज पंडित नेहरूज कंट्रीब्यूशन गोज एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंदिरा गांधी गोज कि इनका कंट्रीब्यूशन कहां पर खड़ा है। क्या इज इट करेक्ट टू से दैट पंडित नेहरू वाज द वन हु सॉ द ड्रीम and his dream is being fulfilled, or was it Indira Gandhi, or is it someone else? The leader who can be credited Indira Gandhi's involvement with the mission was from the time, or India's science and technology program was from the time when she was moving along with her father to various destinations. So these are some pictures from the files of those times. Vikram Sarabhai with Indira Gandhi in the first picture, Homi J. Bhabha briefing Pandit Nehru in the second picture, Indira Gandhi is standing there, and the third one is Homi J. Bhabha with Pandit Nehru at one of the spots. So ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी पंडित नेहरू यानी अपने फादर के साथ अलग अलग जगहों पर जाती थी और इन मिशंस और इन प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी। उसी का नतीजा था कि इंदिरा गांधी के दौर के टर्म में जो कुछ भी हुआ वो इसलिए क्योंकि शी हैड एन आइडिया। So she is the leader who can be credited with taking space research seriously and creating a framework for space program and research in India. इंदिरा गांधी ही हैं जिन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, वो ग्राउंड वर्क किया, वो तैयारी की, वो क्या कहते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वो इसरो को वो चीजें दी, पैसे दिए, वो एबिलिटी दी, वो साइंटिस्ट दिए, जिसके कारण इसरो वो सब कर पाया जो आज आप देख रहे हैं। So Indira Gandhi's contribution is immense as far as that is concerned. But then can she be called the messiah of Indian space mission? The answer is no. Why? Because she focused largely on infrastructure development and making a mark on the space map. But Rakesh Sharma went to space mission because of the help of Russian. Not India could not send its own manned mission to space, or India could not send its own mission to moon. India was purely and solely dependent on the Russian or any other agency for every single thing that India was doing. So while she was creating the infrastructure, while she had the
right intention, but maybe when it came to execution, she could not do much because there was handicap. Handicap was because of the technology lack of technology. No country was willing to give us technology or transfer technology. So when it came to execution, India could not do it. And because India could not take the giant leap because of execution, Indira Gandhi may not be called the messiah of India's space or science program or atomic mission. After Indira Gandhi's death, ISRO, because we are all focusing on Chandrayaan mission, so मैंने कहा ना गैप आता है. जब भी कोई लीडरशिप, इंदिरा गांधी जैसी लीडरशिप थी तो इस देश में बहुत कुछ हो रहा था. अगर इंदिरा गांधी रहती तो शायद इंडिया बहुत कुछ कर सकता था. Unfortunately, she died in October 1984. After Indira Gandhi's death, ISRO's work continued under Rajiv Gandhi's regime. So Rajiv Gandhi was elected and ISRO's work continued. जो पेस ऑफ प्रोग्रेस था वो सेम था. यानी अगर आप पीरियड देखेंगे तो इंदिरा गांधी के डेथ के बाद जो कुछ भी इंदिरा गांधी ने आउटलाइन किया था, उसी आउटलाइन पर, उसी लाइन पर इसरो काम करता रहा, उसी लाइन पर गवर्नमेंट्स काम करती रही, उसी लाइन पर राजीव गांधी काम करते रहे, उसी लाइन पर वीपी सिंह ने काम किया, उसी लाइन पर पीवी नरसिम्हा राव ने गवर्नमेंट ने काम किया, उसी लाइन पर एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल गवर्नमेंट ने काम किया, उसी लाइन पर चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने काम किया. ये वो लाइन था जो इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया था. इसरो का जो फ्रेमवर्क इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया था वो वाजपेयी के आने तक डिस्टर्ब नहीं हुआ था. लार्जली उसी फ्रेमवर्क पर काम हो रहा था और पेस भी लगभग वही था. तो उसके बियॉन्ड जो वो लोग कर रहे थे, सैटेलाइट लॉन्चिंग फॉर वेदर, सैटेलाइट लॉन्चिंग फॉर बेटर टेलीविजन सर्विसेज और टेलीकॉम सर्विसेज, उससे ज्यादा इंडिया कुड नॉट थिंक बियॉन्ड दैट, बिकॉज दैट इज द स्ट्रक्चर दैट इंदिरा गांधी क्रिएटेड. और इंदिरा गांधी के स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद कोई और लीडर आया नहीं जिसने कोई और स्ट्रक्चर क्रिएट किया. तो इंदिरा गांधी से लेकर वाजपेयी के बीच, वाजपेयी केम इन 1998, इस दौरान इसरो और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम और इंडिया का एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम वैसे ही चलता रहा जैसे इंदिरा गांधी ने इंसाज किया या जैसा इसरो ने इंदिरा गांधी रिजीम के दौरान खुद को शेप किया. नथिंग मच हैपेंड. In 1992, when Indira Gandhi died, Rajiv Gandhi became the prime minister. In 1989, Rajiv Gandhi lost the election. VP Singh became the prime minister. Within 11 months, VP Singh was removed. Chandrasekhar became the prime minister. India entered an uncertain political era. यानी एक ऐसे एरा में इंडिया चला गया जहां कंप्लीट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और इस इंस्टेबिलिटी का फायदा यूएस ने उठाया. कैसे? आपको याद होगा 89 में वीपी सिंह गवर्नमेंट बनी और 90 नवंबर में चली गई. 90 नवंबर में चंद्रशेखर गवर्नमेंट बनी कांग्रेस के सपोर्ट से और अप्रैल 1991 में चंद्रशेखर गवर्नमेंट गिर गई. मार्च 1991 में, मार्च 1991 में इंडिया के पास पैसे नहीं थे एंड इंडिया हैड टू बोरो मनी बाय मॉर्गेजिंग गोल्ड. हमको अपना सोना रखकर पैसे लेने पड़े थे इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन से. उस दौर से लेकर हम यहां पर पहुंचे. यूएस ने इस जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि 91 में चंद्रशेखर गवर्नमेंट गिर गई, इलेक्शंस हुए, में इलेक्शंस वर गोइंग ऑन एंड राजीव गांधी was assassinated, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट came. So India was in an era of uncertain political situation. यूएस को समझ में आया कि बेस्ट तरीका है, क्योंकि उनको इंडिया का रशिया टाइप पसंद नहीं आ रहा था. सोवियत यूनियन के साथ इसरो का टाइप, खास करके स्पेस साइंस में, ये यूएस को नागवार गुजर रहा था. क्यों? क्योंकि रशिया अपनी टेक्नोलॉजी को बेचकर इंडिया से के थ्रू पैसे कमा रहा था. फ्री में तो कुछ हो नहीं रहा था. यूएस जाहिर चाहता होगा कि वो भी कुछ कमाए, बट इंडिया यूएस के साथ अलाइन नहीं कर रहा था बिकॉज इंडिया वाज नॉट एन नेचुरल एलाई ऑफ यूएस. इंडिया वाज एन एलाई ऑफ रशिया एट दैट टाइम. यूएस यूज्ड टू सपोर्ट पाकिस्तान. So India could never deal with US and US never trusted India at that time. So what US did was this. In 1992, US imposed a sanction on ISRO. 2 साल का sanction
6 मई 1992 को यूएस ने इसरो पे इंपोज किया और ये सैंक्शन 6 मई 1994 तक चला। यानी आपने लास्ट कब सुना था मेजर डेवलपमेंट? 1984 में, जब राकेश शर्मा स्पेस गए थे। उसके बाद कभी ये सैटेलाइट लॉन्च हो गया, कभी वो सैटेलाइट लॉन्च हो गया, छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च होते रहे। इंडिया का वेदर फोरकास्ट इंप्रूव होता रहा, टेलीविजन स्टेशन लगते गए, टेलीकॉम सेक्टर थोड़ा बहुत आगे बढ़ता गया। बस शायद कुछ इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ एटॉमिक एनर्जी में कुछ कर लिया होगा, इसके अलावा आपने क्या सुना है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था। सिर्फ जो सिखाया था इंदिरा गांधी ने, गवर्नमेंट्स वही कर रही थी। 92 में आकर वो भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इसरो पे बैन लगा दिया यूएस ने और इसरो बिकेम अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन। यूएस ने कहा आप रिसर्च में कुछ नहीं कर सकते, स्पेस रिसर्च। बेसिक प्रॉब्लम वाज दैट इंडिया वाज डीलिंग विद रशिया। It exploited the fragile political atmosphere in India between 1989 and 1992 and tried to exploit that to its advantage. वो नहीं चाहता किसी भी देश का स्पेस प्रोग्राम बढ़े, तो इंडिया का कैसे बढ़ सकता था? आज इंडिया लाई है तो आज सब कुछ यूएस करने को तैयार है, बट उस टाइम में ऐसा नहीं था। इन 1994 जब इसरो पे से बैन हटा, ऑन 6th of May 1994 को हटा, इसरो ने पीएसएलवी लॉन्च किया सेम ईयर। सो दैट वाज द नेक्स्ट बिग स्टेप। इंडिया लॉन्च्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन 1994 and thereafter twice more, because first launch of PSLV failed, and not just first failed, there were two partial failures also. PSLV had a streak of more than 50 successful flights thereafter. पहले तीन फेल हो गए, एक कंप्लीटली, दो पार्शियल, लेकिन उसके बाद 50 सक्सेसफुल फ्लाइट्स इंडिया ने पीएसएलवी के जरिए लिया। This PSLV enabled India to launch all of its low Earth orbit satellites, some payloads to GTO and hundreds of foreign satellites. इंडिया जिसके पास पैसे नहीं थे स्पेस डेवलपमेंट के लिए, स्पेस साइंस के लिए, (1994) during the term of PV Narasimha Rao, who was the prime minister at that time, पीएसएलवी लॉन्च होने के बाद इंडिया ने अपने सैटेलाइट तो 50 से ज्यादा लॉन्च किए ही, फॉरेन सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए, क्योंकि इंडिया बिकेम अ इजी डेस्टिनेशन फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट। बट इंडिया का डिपेंडेंस रशिया पे खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी बियॉन्ड सैटेलाइट्स नहीं थी। ये सब कुछ सैटेलाइट लॉन्च कर सकता था, इंडिया वहीं तक था टिल 1998। As I said, between 1969 when ISRO was formed until 1998, till Vajpayee government came, whatever Indira Gandhi regime had thought, whatever ISRO and Indira Gandhi decided, that is what was running or happening in the country till 1998. In 1998, India faced a very unique situation. It was a difficult but a unique situation. 1998 ने आके सब कुछ बदल दिया। क्या बदल गया 1998? 1998 वो साल है, 1998 वो साल है जिसने इस देश को तकलीफ दी, लेकिन बून इन डिस्गाइज भी दिया। यानी उस तकलीफ के साथ कुछ ऐसा दिया जिसने भारत की तस्वीर बदल दी। इसीलिए 1998 को स्पेस साइंस के लिए सबसे क्रिटिकल ईयर आप मान सकते हैं। 1998 was the year when Vajpayee came to power. वाजपेयी की सरकार 1998 में 13 महीने के लिए बनी थी। ये वही दौर है जब इंडिया ने अपना परमाणु विस्फोट किया, एटम बॉम्ब टेस्ट किया इंडिया ने पोखरण में, पोखरण टेस्ट किया इंडिया ने स्पेस मिशन को लेकर भी 1998 में बहुत कुछ किया। वो इसलिए क्योंकि 98 एक ऐसा साल था जिसमें इंडिया ने अचीवमेंट्स भी लिए और सेटबैक्स भी लिए। वाजपेयी के रिजीम में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी था, बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और सेटबैकिंग था। क्या हुआ? 1998 में वाजपेयी ने
पीस इनिशिएटिव किया विथ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के साथ वाजपेयी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वो लाहौर चले गए। जब वो लाहौर फरवरी में थे, पाकिस्तान गए, कुछ पता नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है। भारत का इस जो कुछ मैं बता रहा हूं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन स्पेस प्रोग्राम के साथ है। वो क्यों? वाजपेयी ने एक अच्छे दोस्त के नाते, एक अच्छे इंसान के नाते दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान चले गए। बस यात्रा किया था, लाहौर बस यात्रा, आप सबको याद। बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए नवाज शरीफ और वाजपेयी के बीच। ऐसा लगा कि दोनों देश के बीच दुश्मनी खत्म होगी और दोस्ती हो जाएगी। लेकिन जब तक वाजपेयी आए तब तक कहानी कुछ और हो चुकी थी, जिसका पता भी नहीं था इंडिया को। इंडिया मेड अ ब्लंडर by blindly trusting Pakistan and allowing it time, space to do things which was completely unknown to Indian security system. Indian intelligence फेल हो गई, इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गई, हमारे देश में घुसपैठिए घुसे और घुसपैठिए में आतंकवादी भी थे और पाकिस्तानी आर्मी भी थी और कारगिल पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ये तब हो रहा था जब वाजपेयी पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रहे थे और वो पाकिस्तान से पहाड़ियों पे चढ़ रहे थे, कारगिल की पहाड़ी चढ़ रहे थे और कारगिल को कैप्चर कर रहे थे। मई में कारगिल की लड़ाई शुरू हुई और जुलाई में भारत ने ये जंग जीत ली। बहुत तकलीफदेह है क्योंकि धोखा आदमी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बैकस्टैबिंग नहीं बर्दाश्त कर सकता, यानी पीठ पे कोई चाकू मारे, ये बर्दाश्त काबिल नहीं है। वाजपेयी के पीठ पे पाकिस्तान ने, नवाज शरीफ ने चाकू घोंपा था। भारत ने वो हालात किसी तरह से कंट्रोल किए क्योंकि वो हालात ऐसे थे जिसका इल्म भारत को नहीं था। भारत को पता भी नहीं था कि उसके दोस्ती करने की कोशिश के पीछे एक इतनी बड़ी साजिश पाकिस्तान रच जाएगा। Pak intruders, both militants and army, entered India and captured Kargil Hills. The war began in May and continued for 2 months till July. Finally, India pushed the enemy out. कारगिल पे दोबारा जीत हुई, विजय दिवस मनाया गया। कारगिल की जंग सबको याद है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उसको भूला है। आज भी फिल्में बन रही हैं, हम लोग देख रहे हैं और हमें पता है कि हमने किस तरह से कारगिल को बचाया। जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी, इंडिया ने यूएस से हेल्प मांगा था। मैंने कहा ना, कारगिल लड़ाई का सीधा कनेक्शन इंडिया के स्पेस प्रोग्राम से। कैसे? वही बता। इंडिया ने बोला था यूएस को कि आप हमको जीपीएस टेक्नोलॉजी दीजिए, जियो पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम है जो आपको बताता है कौन कहां पर है, जिसके थ्रू आज आप गूगल मैप सर्च करते हैं, रूट सर्च करते हैं, आपको जीपीएस सब कुछ बताता है किधर क्या है। इंडिया ने बोला था, क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए थे, पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, आर्मी मैन और पाकिस्तानी के जो आतंकवादी थे वो ऊपर बैठे थे पहाड़ पे और हम नीचे थे। तो हम जानना चाह रहे थे कि हमको एयर स्ट्राइक करना है तो हमको कहां से करना है और कहां पर करना है। सो इंडिया आस्क्ड यूएस फॉर जीपीएस असिस्टेंस, that you please share GPS technology with us and we will try to find out where they are and we will do precise bombing. US refused. यूएस ने वाजपेयी से को मना कर दिया कि हम आपको जीपीएस टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। That is when Vajpayee decided that India must have its independent जीपीएस सिस्टम, और जीपीएस सिस्टम को लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट लॉन्चिंग जरूरी है, और सैटेलाइट लॉन्चिंग जीपीएस के लिए आपको बहुत हाई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है। सबसे जरूरी हो गया था इसरो को और मजबूत करना। एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के पीएम के साइंटिफिक एडवाइजर थे, उनको इन्वॉल्व किया गया और इसरो के लिए बहुत सारे नए मेजर्स लिए गए। इसरो को और मजबूत किया गया, इसरो के बजट को बढ़ाया गया, इसरो के साइंटिस्ट का नंबर बढ़ाया गया, इसरो के जो टेक्नोलॉजिकल हेल्थ थी वो इनहांस किया गया। वाजपेयी गवर्नमेंट ने दिन रात लगाकर इसरो की तस्वीर बदल दी।
वो इसलिए क्योंकि वाजपेयी को किसी भी सूरत में इंडिया का अपना जीपीएस टेक्नोलॉजी चाहिए था, ताकि फिर कोई कारगिल ना हो और हमें पता ना चले कौन कहां से घुस रहा है, कम से कम पता तो चले, फिर हम करें। तो जो धोखा यूएस ने दिया था, उसी का नतीजा है कि इंडिया आज चांद पे पहुंचा। अगर उस दिन वो नहीं हुआ होता, कारगिल वॉर के दौरान यूएस ने जीपीएस टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया हो, नहीं किया होता, तो शायद इंडिया ने इतना एफर्ट इसरो के थ्रू नहीं किया होता। रशिया का भी कंट्रीब्यूशन है, आई एम कमिंग। इंडिया के ग्रोथ में रशिया और यूएस दोनों का कंट्रीब्यूशन है। वाजपेयी आस्क्ड इसरो टू डेवलप इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम IRNSS, which is now expanding further. So इंडिया ने अपना ही एक नया सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा IRNSS, और ये सिस्टम ही है जो अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। उससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था कि इंडिया इस तरह का हाईटेक सिस्टम लेकर आ जाएगा। In 2003, when China sent humans into space, 2003 में चाइना ने स्पेस मिशन के लिए इंसान भेजे। Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on that day urged scientists that develop technology, develop program, develop system where Indians can land on moon. इंडिया का जो मून मिशन है वो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है, किसी और का नहीं। पता नहीं कौन लोग क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो समझ में आएगा कि इंडिया का मून मिशन जिसको आप आज देख रहे हैं, जिसको लेकर इतने हम खुश हैं, वो उसका सपना न पंडित नेहरू ने देखा था, न इंदिरा गांधी ने देखा था, न पीवी नरसिम्हा राव ने देखा था, न राजीव गांधी ने देखा था, वो न वीपी सिंह, न चंद्रशेखर, न एच.डी. देवेगौड़ा, न आई.के. गुजराल, वो देखा था वाजपेयी ने। और उसी सपने का नतीजा है कि आज हम चांद पर पहुंचे हुए हैं। तो अगर किसी ने चांद पर पहुंचने का सपना देखा था तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 2003 में कहा कि अगर चीन जा सकता है चांद स्पेस में, वो अपने लोगों को स्पेस पहुंचा में भेज सकता है, तो हमारे साइंटिस्ट किसी से कम नहीं है, हमारे साइंटिस्ट सबसे बेहतरीन है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हम मुहैया कराएंगे। वी विल एनहांस द टेक्नोलॉजी। आप अपने लोगों को तैयार कीजिए और इंडिया को चांद पे पहुंचाइए। एपीजे अब्दुल कलाम वाज द पर्सन जिनको वाजपेयी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी टू शेप इंडियाज न्यू स्पेस मिशन पॉलिसी। इंडिया का अब स्पेस प्रोग्राम क्या होगा, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अफ्रेश यानी नए सिरे से तैयार करने के लिए वाजपेयी ने कहा in 2003. Unfortunately, Vajpayee lost in 2004 and could not see the Chandrayaan project getting completed in his term. Otherwise, the Chandrayaan project, which is being now seen, was conceptualized, envisaged, dreamt by Vajpayee, and the work on Chandrayaan also started during his term. India's moon mission Chandrayaan-1 was announced by Atal Bihari Vajpayee during his Independence Day speech on August 15, 2003. यानी 2003 में चाइना ने भेजा स्पेस में अपने लोगों को। पीएम वाजपेयी ने 15 अगस्त के स्पीच में अनाउंस किया कि हम चांद पर जाएंगे, और चंद्रयान मिशन 1 को उसी दिन लॉन्च किया। इसरो ने उसी दिन से काम शुरू किया था चंद्रयान मिशन 1 का, which became successful and it was completed during the term of Dr. Manmohan Singh in 2007-2008. It is part of this Vajpayee initiative जो आज आप देख रहे हैं चंद्रयान को चांद पे, ये वाजपेयी के उस इनिशिएटिव का नतीजा है जो इसरो ने शुरू किया 2003 में, नॉट जस्ट फॉर मून बट फॉर मार्स। यानी भारत ने तय किया, वाजपेयी पीएम वाजपेयी ने तय किया कि न केवल हम चांद पे जाएंगे, हम मंगल पर भी जाएंगे, और उसके आगे भी हम सोचेंगे कि हमें कहां जाना है। ये सब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में अनाउंस किया, और जो कुछ भी इसरो कर रहा है वो वही है जो
मिस्टर वाजपेयी ने सोचा और कहा. So if you go by facts, if one goes by the facts, just by facts, the leader who envisaged India's independent space mission is Atal Bihari Vajpayee. Not Narendra Modi, not Pandit Jawaharlal Nehru, not Indira Gandhi, not anyone else. It is only and only Atal Bihari Vajpayee who thought, dreamt, and decided to send its own mission to moon, Mars and beyond. आपको याद होगा, कोई बगैर रीजन के एक स्लोगन लॉन्च नहीं किया था वाजपेयी ने. प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने अपने स्पीच में, जो पहला उन्होंने स्पीच दिया रेड फोर्ट से, उन्होंने एक स्लोगन दिया विच वाज, तब तक इस देश में एक स्लोगन चलता था जो 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 लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान. क्यों? क्योंकि 62 वॉर हारने के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्राइम मिनिस्टर बने. उनको समझ में आया कि केवल किसान से नहीं चलेगा देश, आपको जवान को भी ताकतवर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम बुरी तरह से हारे थे 62 वॉर में. वाजपेयी को 98 में समझ में आया, 98 में, कि केवल जवान और किसान से काम नहीं चलेगा, आपको विज्ञान भी चाहिए. इसीलिए उन्होंने कहा जय किसान जय जवान जय विज्ञान. ये जो स्लोगन था वो बगैर कारण के नहीं आया था, बगैर रीजन के नहीं आया था. Because Vajpayee realized that if India has to grow, it cannot grow without science. Science came into focus because of Mr. Atal Bihari Vajpayee. He brought science to the core of government's plan, government's policy. So these are facts which people should read. Without reading, they go and write anything, giving credit to anybody, which is a clear case of bias, because I don't think they are going through the facts and reality in this case. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan was only and only created because India wanted to focus on science. It's not about Vajpayee. It's about India. He was instrumental in executing whatever Vajpayee dreamt. अगर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई चीज सोची तो उसको एपीजे अब्दुल कलाम ने कंप्लीट किया. आज इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि ये इस धर्म और उस धर्म. एपीजे अब्दुल कलाम was not Hindu, but he was an Indian. You need to be an Indian to do things. For Dr. Kalam, it was nothing but Indian nationality which mattered. So he just thought as an Indian, nothing else he thought. He executed everything that Vajpayee did, and that is the reason why the coordination between Vajpayee and Dr. Kalam rose so much that when it came to elevating somebody to the post of president, the Vajpayee regime, the India regime thought Dr. APJ Abdul Kalam is the best candidate. क्यों? क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन था इंडिया के स्पेस मिशन को यहां से लेकर वहां पहुंचाने में. इंडिया ने अगर पोखरण टेस्ट किया तो इट इज बिकॉज ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम. व्हाई? बिकॉज डॉक्टर कलाम kept telling Indira Gandhi, we are ready, we are ready, we are ready. India did not test it. Dr. Kalam kept telling Rajiv Gandhi, we did not test it. PV Narasimha Rao, same story. India did not test. जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वही चीज वाजपेयी कहा, वाजपेयी said yes, we will test it. और पोखरण टेस्ट is the brainchild, is the result of the effort that डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम made. और जो कारगिल का वॉर इंडिया ने हारा, इंडिया ने जीता उस डिफिकल्ट सिचुएशन में, उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, जो स्पेस की तरफ इंडिया का मतलब माइंडसेट घूमा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोकस में आया, उसके रीजन भी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिसके कारण वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम का जो कोऑर्डिनेशन था वो लगातार बढ़ता गया. एंड एपीजे अब्दुल कलाम वाज कंसीडर्ड एज द पर्सन हु शुड बी टेकिंग द टॉप पोजीशन. इट इज बिकॉज ऑफ मिस्टर वाजपेयीज ड्रीम एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम कि आज हम इस मून मिशन को कंप्लीट देख रहे हैं. चंद्रयान को अगर हम चांद पे देख रहे हैं, चंद्रयान को अगर हम देख रहे हैं, चंद्रयान पहुंच गया चांद पे और वहां से तस्वीरें भेज रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम ने वो चीजें देखी, सोची और की जो किसी और प्रधानमंत्री या किसी और साइंटिस्ट ने नहीं सोचा. लॉजिकली, टेक्निकली, factually, it is Mr. Vajpayee
who can only be credited for being the Chanda Mama of India's mission. Does that mean that Mr. Modi or Mr. Manmohan Singh did nothing? As I said, चंद्रयान 1 का जो मिशन की शुरुआत हुई वाजपेयी के टर्म में हुई, लेकिन चंद्रयान 1 मिशन का जो कंप्लीशन हुआ 2008 में हुआ. अक्टूबर 2008 पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट के जरिए चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया. इट टर्न आउट टू बी अ बिग सक्सेस बिकॉज इसरो ने जो चंद्रयान मिशन भेजा, उसने कंफर्म किया और डिस्कवर किया कि चांद पे पानी है. इससे पहले कोई डिस्कवरी इस तरह की नहीं हुई थी. Apart from detecting water, the Chandrayaan 1 mission performed several other tasks such as mapping and atmospheric profiling of moon. ये भी पहले कभी नहीं हुआ कि मून के सतह को नापना और एटमॉस्फेयर का जो मून का जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसके क्या कैरेक्टर्स हैं वो बताना, इससे पहले किसी मिशन ने नहीं किया था. चंद्रयान 1 ने किया. चंद्रयान 1 लॉन्च होता अक्टूबर में, उससे पहले एज शेड्यूल चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया इन सितंबर, आई थिंक अगस्त 2008 एज शेड्यूल्ड बाय इसरो. Chandrayaan 2 was announced ahead of the completion of Chandrayaan 1. इसरो ने चंद्रयान 2 को फाइनलाइज कर लिया था ड्यूरिंग द टर्म ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह ओनली, कि चंद्रयान 2 भी लॉन्च के लिए रेडी है और हम चांद पे जा सकते हैं. ये बात है जनवरी 2013 की. इसरो के मुताबिक इन 2013 जनवरी इंडिया वाज रेडी टू सेंड चंद्रयान 2 टू मून. ये सॉफ्ट लॉन्च था. चंद्रयान मून सॉफ्ट लॉन्च नहीं था, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी. चंद्रयान मून केवल हॉवर कर रहा था. उसको भेजा गया था केवल घूमते हुए तस्वीरें लो, एसेस करो, रिसर्च करो और रिपोर्ट दो. It was not supposed to land and it did not land. But Chandrayaan 2's mission was about soft landing on moon. That too on the South Pole, जहां पर अभी Chandrayaan 3 ने लैंड किया है. Chandrayaan 2 was exactly the same mission. So India decided that it was ready to launch the satellite in 2013 January itself during the Manmohan Singh regime. But Manmohan Singh regime rescheduled it to 2016. उसको सैटेलाइट को भेजने से मना कर दिया. क्यों? उसका रीजन ये था कि जो विक्रम लैंडर की बात हो रही है ना, ये लैंडर रशिया देने को तैयार नहीं हुआ. इंडिया के पास टेक्नोलॉजी थी, सैटेलाइट इंडिया भेज सकता था, लेकिन इंडिया के पास लैंडर नहीं था. यानी जो उतरे, घूमे, आप देख रहे हैं ना, ये जो चंद्रमा में लैंडर घूम रहा है, जिसकी तस्वीरें यस, ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द विक्रम लैंडर, जो नीचे उतरा है. और वो पहली तस्वीर में भी आपको दिख रहा है नीचे कि वो विक्रम लैंडर घूम रहा है. यही विक्रम लैंडर है जो रिसर्च करेगा. दिस लैंडर रशिया वाज सपोज्ड टू गिव अस इन 2013, and India should have launched Chandrayaan 2 in 2013 January itself. लेकिन रशिया ने कहा हम अभी आपको ये लैंडर नहीं दे सकते. अब रशिया देना चाहता था, नहीं चाहता था, या इंडिया यूएस के साथ ज्यादा क्लोज हो गया था इसलिए रशिया नहीं देना चाहता था, या रशिया के पास टेक्नोलॉजी देने के लिए चीजें नहीं थी, या रशिया अपने इंजीनियर्स को भेज नहीं पाया, या सामान नहीं इकट्ठा कर पाया. नो वन नोस. बट फैक्ट रिमेन्स दैट Russia completely refused to give us that lander, and we could not launch Chandrayaan 2 in January 2013. And Manmohan Singh government was forced to postpone it to 2016. So if you go by the developments between 2004 and 2014, the Manmohan Singh government can be credited by a few of the achievements. ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कोई अचीव नहीं किया.
मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने भी चंद्रयान मिशन को लेकर कुछ कुछ चीजें की, जैसे मनमोहन सिंह government regime can be credited for the completion of Chandrayaan 1 project, even if it was launched by Mr. Vajpayee. Dr. Manmohan Singh completed it, and it was completed during his term. Chandrayaan 1 was successful mission, and credit for that successful mission has to go to the premier at that time, and that happened to be Mr. Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh. Not just that. Dr. Manmohan Singh, even before the completion of Chandrayaan 1 project, announced Chandrayaan 2 mission as per schedule, as decided by ISRO. So the government did not delay it. The only problem that can be found with Dr. Manmohan Singh's regime is that it could not convince Russia to supply the lander. आपको डिप्लोमेसी नहीं छोड़नी चाहिए. अगर आप यूएस के नजदीक भी हो गए हैं, तब भी आपको ऐसा रिश्ता बना के रखना चाहिए जिसमें आपको जो जरूरत की चीजें मिले. रशिया बार बार कहने के बावजूद भी इंडिया के उसने लैंडर हमको नहीं दिया. ये मुझे लगता है ये मनमोहन सिंह रिजीम की फेलियर थी, that they could not convince Russia to give us that lander and our mission could not take off. Come May 2014 and Narendra Modi wins the election. तो 2014 मई में नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीता. ये सारी वो चीजें हैं जो मैं फैक्ट्स से बता रहा हूं आपको. ये कहानी में प्राइम मिनिस्टर्स की नहीं सुना रहा हूं. मैं आपको बता रहा हूं इंडिया के मून मिशन, इंडिया के स्पेस मिशन की कहानी क्या है, अब तक जो कुछ भी हुआ है उसकी हकीकत क्या है, मुझे क्या लगता है वो भी मैं बता रहा हूं. लेकिन आप डिसाइड कीजिए कि आपके मुताबिक जो कुछ भी फैक्ट्स में रख रहा हूं, आपके हिसाब से इंडिया का चंदा मामा कौन है, कोई भी हो सकता है. लेकिन मेरे मुताबिक जो है वो मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं, backed by the facts. जो facts indicate कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूं. So May 2014 BJP won election again and Narendra Modi became the prime minister. Thereafter the government brought the focus back to the plan, policy and the mission and the programs that Atal Bihari Vajpayee had launched as far as India's space mission is concerned. जो कुछ भी मिस्टर वाजपेयी ने ब्लूप्रिंट छोड़ा था, जो कुछ भी मिस्टर वाजपेयी ने स्पेस मिशन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उस ब्लूप्रिंट को दोबारा जमीन पे पीएम मोदी ने उतार दिया. 2014 में आते ही नतीजा ये हुआ कि जो लैंडर आपको रशिया नहीं दे रहा था, पीएम मोदी ने डिसाइड किया कि इसरो ये लैंडर खुद तैयार करे, हमें रशिया से नहीं चाहिए. Why am I saying there is a need for a political will? Why is it? जब इंदिरा गांधी होती है तभी डिसीजंस होता है. इंप्लीमेंटेशन इज अ डिफरेंट थिंग. आपको कोई रोड मैप बता देगा तो आप चली जाओगे, डिसाइड ही कर लोगे. आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है. इनिशिएटिव कौन ले रहा है स्पेस मिशन में? पहले इंदिरा गांधी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, एंड द थर्ड टाइम व्हेन यू गॉट स्टक बिकॉज ऑफ रशिया रिफ्यूजिंग टू गिव यू द लैंडर, अगेन Narendra Modi decided nothing doing. We are not dependent on anybody. We will not be dependent on Russia. हम रशिया का वेट नहीं करेंगे. इसरो ये लैंडर खुद बनाए और हम अपना मिशन खुद इंडिजिनसली भेजेंगे. मिस्टर नरेंद्र मोदी's biggest contribution is that he indigenized India's space mission. इंडिया में इंडिया की चीजें बने, इंडिया का ही हो, इंडिया की ही सैटेलाइट हो, इंडिया का ही लैंडर हो, इंडिया का ही रॉकेट हो, इंडिया का ही सब कुछ हो. बी इंडियन, बाय इंडियन, विथ इंडियन, फॉर इंडियन, ये पॉलिसी पीएम नरेंद्र मोदी लेकर आए. नतीजा ये हुआ इंडिया ने रशिया का वेट करना बंद किया और लैंडर बनाने की तैयारी शुरू कर दी. सो द मोमेंट इंडिया डिसाइडेड टू गो इंडिजिनस and not depend on anybody, Chandrayaan 2 project took off. Within 4 years, 2019, India launched Chandrayaan 2 using its LMB-3 rocket. The mission was not a failure. A lot of people feel that mission failed. Mission is a partial failure. Chandrayaan 2 is not a failure, complete failure. उसका रीजन क्या है बताता हूं. चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में फर्क क्या है?
चंद्रयान 2 में जो काम नहीं किया वो था लैंडर। लैंडिंग नहीं हुई और वो लैंडर नहीं आया बाहर। जो हॉवर कर रहा था, जिसने ऑर्बिट तक आपको पहुंचाया, वहां तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद ये मिशन फेल हो गया। सो इट इज नॉट अ कंप्लीट फेलियर। व्हाट हैपेंड वाज दिस: the spacecraft was successfully put into lunar orbit on August 2, 2019. 2019. The aircraft was successfully put into lunar orbit on August 20, 2019, but the lander was lost while attempting to land on September 6, 2019. The orbiter is operational even now, collecting scientific data, and is expected to function for 7.5 years. दो पार्ट में था। सैटेलाइट ने दो चीजें भेजी, एक ऑर्बिटर और एक लैंडर। ऑर्बिटर सही प्लेस हो गया और वो फंक्शन कर रहा है, अभी भी 7.5 साल काम करेगा। सो चंद्रयान 2 में का जो मिशन है वो पार्शियली सक्सेसफुल है, बिकॉज चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजना पड़ा है। इंडिया हैज नॉट सेंड एन ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या होता है? जो चंद्रमा की ऑर्बिट पे घूम रहा है, मून के ऑर्बिट को, मून के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, मून के ऑर्बिट में घूम रहा है और डेटा कलेक्ट कर रहा है। दैट ऑर्बिटर इज अलाइव एंड वर्किंग, and that's the reason why in Chandrayaan 3 India has not sent a orbiter. Orbiter is still functional, which was sent in 2019 July 22. It failed because the lander lost contact, it could not land or it crashed, whatever you can call it. So जो लैंडर वाला पार्ट था वो फेल हो गया, ऑर्बिटर वाला पार्ट सक्सेसफुल हो गया। तो ऑर्बिटर तक तो सब ठीक था, जब लैंड करने की बात आई तो वो लैंड ठीक से हुआ नहीं, क्रैश हुआ और वो मिशन वहां पर अनसक्सेसफुल हो गया। सो पार्शियली वो मिशन फेल हो गया था, कंप्लीटली नहीं। उस मिशन के पार्शियली फेल होने के आपको एक तस्वीर याद होगी। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रिमेंबर इट। लेट मी पुट दिस पिक्चर on screen. I don't know whether I have picked that picture, but I'm sure I must have picked it. 1 minute. Let me show you that picture. Where is that picture? I think I have not put it. Why? No, I missed it. So this is the picture जो मिशन फेल हो गया था। उस वक्त इसरो के जो चीफ थे वो बहुत इमोशनल हो गए थे, लेकिन पीएम ने उसी टाइम कहा था, पीएम मोदी ने, that you don't need to be disappointed. Prepare for चंद्रयान 3. इंडिया का इतना बड़ा नुकसान हो गया था, एक लैंडर का नहीं उतरना, एक लैंडर का क्रैश कर जाना, मिशन का पार्शियली फेल हो जाना बहुत बड़ा नुकसान है। In terms of money also, India doesn't have the same monetary power as US or Russia or anybody else. India is still a developing country. We do not have that much money, but still we lost that mission partially, and there was no regret in the mind of PM Modi. So he told the then ISRO chief, forget about it. Launch Chandrayaan 3 project. This was within 2 months of the failed mission or partially failed mission that Chandrayaan 3 project work started. 2 महीने के भीतर काम भी शुरू हो गया। September, it failed on August 20th, on September 6, 2019, and within 2 months, in November, work on Chandrayaan 3 started. 2 months, 2 महीने के भीतर। That is the reason why the Chandrayaan 3, as I pointed out, doesn't have an orbiter. It only has a lander, a rover, and a propulsion module with mission costing 250 crore. अभी जो चंद्रयान 3 गया है इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं, एक लैंडर है, एक रोवर है और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो प्रोपल कर रहा है, उसको ले जा रहा होता है। और इस मिशन का कॉस्ट है 250 करोड़ और जो लॉन्च व्हीकल LMV-3 है
उसको में उसके जरिए इसको लॉन्च करने का कॉस्ट है 365 करोड़, और ये मिला के लगभग 600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बन जाता है। 365 और 50, 415 और 200, 615 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हो जाता है। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट जो दुनिया में जो बाकी लोग लॉन्च कर रहे हैं उससे बहुत कम है। इतने कम कॉस्ट के साथ चंद्रयान 3 मिशन का सक्सेसफुल होना, इंडिया का चांद पे पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी देश के बस की नहीं है जो भारत ने किया है। ये फैक्ट्स हैं जिसको जानना जरूरी था। मुझे लगा ये चीजें नहीं बताएंगे। आई नो द वीडियो इज लॉन्ग बट इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1947 से लेकर 2023 का इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट रिलेटेड टू इंडिया स्पेस मिशन is not an easy job, but still I thought let me sit down, get the facts out for you, put it at one place and bring it before you, so that all this nonsense ki falana is the father of the mission, falana is the father of the mission, this goes out. If one person is the father of the entire India space or moon mission program or Chandrayaan program or space program, anyone who dreamt of Indians going on in space, India landing itself in space or India landing itself on the moon is only and only Atal Bihari Vajpayee. वाजपेयी जी का ही वो काम है जिसको मिस्टर मोदी आगे ले जा रहे हैं। सिर्फ ये है कि मिस्टर मोदी took an initiative and rejected the Russian offer, did not wait for it, turned the entire project indigenous, and now India is set to go beyond this. This is the drive that a leadership can have. ये लीडरशिप ड्राइव इंदिरा गांधी में भी थी, ये लीडरशिप ड्राइव मोदी में भी है, और ये लीडरशिप ड्राइव वाजपेयी में भी थी। लेकिन जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू मी दैट इज मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी पॉलिसी है जिस पर आप आगे बढ़ रहे हो। इंडिया इज नाउ प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर अ सन मिशन। टुडे इसरो हैज द लार्जेस्ट world's constellation of remote sensing satellites, and it operates Gagan IRNSS satellite navigation systems, which is one of the world's best, and it is most reputed. India has already sent 3 missions to the moon and 1 to Mars. India is the only country जिसने चांद पे 3 बार अपना मिशन भेजा है, 2 सक्सेसफुल, 1 पार्शियली सक्सेसफुल और 1 मिशन मार्स पे भेजा है। ऐसा करने वाला सिर्फ एक देश है, वो है हिंदुस्तान। So if the credit for landing on moon goes to anyone, that's Atal Bihari Vajpayee. And because of the initiative that Narendra Modi has done, today he is the boss, today he is the Prime Minister. So if we are there, the immediate credit goes to him, but ultimate credit goes to Mr. Vajpayee. You cannot take the credit away from these 2 people. And think of what happened in 60s or 70s or 80s or 90s and negate the contribution of these 2 gentlemen. I think these 2 made the maximum contribution towards where we are.